So, good afternoon, students. So, now we are going to discuss you are going to start the unit number 2, that is the conditional probability and independence of events. Hope you are all able to see the screen properly. Yes. Okay. So, just before few minutes, I have revised the entire unit 1, and now let's see some advanced concept in the probability. So, these advanced concepts are conditional probability and independence of events. Okay. So, before moving on to this unit, let us understand what you will get from this unit and what are the learning outcomes. Okay. Whenever you start any new lesson or a new unit, you must be knowing what you are what is the outcome, what is the learning outcome, what you are expected results from this unit. Okay, so let's discuss few minutes on this. So when you will when I will explain this unit to you, at the end of the unit you will be able to understand the concept of conditional probability. Okay, so what is a conditional probability we are going to see. So you will understand conditional probability. Then you will be able to understand the concept of independent events. What do you mean by independent events? Then you will be able to calculate the probabilities based on conditional probabilities and independence. Okay. Then you will be able to uh, apply the conditional probability and independence in daily life situations. Also, you will be able to differentiate between the mutually exclusiveness and independence of two events. Okay, so there is a Bayes theorem. So you will understand what is a Bayes theorem and you will be able to apply the Bayes theorem in real life examples. Then last concept there in this unit is sensitivity and specificity and how it is useful in the medical field. So that you will understand. Okay, so these are the learning outcomes. At the end of this unit, you will be able to gain the knowledge regarding these 8 points. Okay, so all these 8 points are related to two major concepts, that is the conditional probability and independence of events. So is that clear? So now we will start with the independence of events. So from this point, we will start independence of event. So what do you mean by independence of events? So let's discuss the real life example. Let's understand. Let's take some illustrations, some real life examples. Then you will be able to understand the concept. Okay. So independent events means if the two events, if the occurrence or non-occurrence of two events, two or more events, do not affect the occurrence and non-occurrence of another event, then such a event we call it as a independent event. Let's try to understand. So, do you have friends? आपके कोई friends है? Yes. I am asking to anyone. Yes, आपके कोई friends है? Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. suppose आप 3 फ्रेंड्स हो, यू आर 3 फ्रेंड्स और आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई किया है. ओके, आपने मेहनत अपने हिसाब से यू हैव डन योर वेल, योर बेस्ट एफर्ट्स आपने दिया. सो डज इट मीन दैट अगर आप पास हो गए तो आपके दोनों दोस्त पास हो जाएंगे, या फिर आप में से कोई पास हो गया तो बाकी सब पास हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? कैन यू से दैट if your pass if your student pass that exam, then you will also pass? Can you say like that? No. You cannot say, है ना? या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपका दोस्त फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे. Not necessarily, isn't it? है ना? जैसे कि पासिंग ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम्पल मैंने
दिया, ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि सपोज अभी रिसेंट एग्जांपल है, अभी परसों बारिश, कल से बारिश हो रही है, परसों से इन्वायरमेंट ऐसा चेंज है, कल बहुत देर तक यानी कि दिन भर पूरा दिन बारिश रहा। डज इट मीन रेनिंग एट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि आज पुणे में बारिश हुई, इट डज इट मीन दैट कि ऑल ओवर महाराष्ट्र या फिर ऑल ओवर इंडिया बारिश हो रही है? डज इट मीन, यानी कि अभी पूना में आया, पूना में बारिश हुआ तो इसका मतलब मुंबई में होना ही चाहिए, ऐसा कुछ है? यस? नहीं सर। ऐसा कुछ भी जरूर नहीं है ना। No. या फिर अगर पूना में हो गई तो मुंबई में होना ही चाहिए, या फिर मुंबई में हो गई तो पूना में होना ही चाहिए, या फिर मुंबई में हुआ तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या फिर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी आप ट्रायल एंड एरर ले लो। इज इट पॉसिबल? नो, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऑल ओवर इंडिया बारिश हुआ या फिर पर्टिकुलर स्पेस रीजन में ही बारिश हुई है ना, ऐसा होता है। इसका मतलब अभी Hello, are you able to listen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So we are discussing the conditional probability and the independence of events. Okay, so we are back on track. So what do you mean by conditional probability? Sorry, independence of events we are discussing. So let's continue with that. Independence of events. So two events A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of those does not affect the occurrence or non-occurrence of another events. Okay, तो इसको समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था. Okay, so let's check whether it is starting. Okay, तो इसको समझने के लिए हम independence of events तो जैसे कि आपका पास होना, यानी कि आपके फ्रेंड, आप पास हो गए तो आपके फ्रेंड या फिर कोई और पास हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं करता है ना. पासिंग ऑफ, if you pass exam, it doesn't mean that your friends will also pass or your friend will not pass. So both cannot be said. So the passing of your and your friends are independent. Okay, then जैसे कि raining. So now it ran Pune yesterday whole day. Okay, it doesn't mean that everywhere the same situation. Somewhere it may rain for a few hours, a few minutes, or for little time. Okay, so raining here, it doesn't mean that it's raining everywhere. So both the events are independent. Now third example हम ले सकते हैं कि जैसे कि
COVID patients are found in Mumbai, isn't it? COVID patients are found in Mumbai. Okay, it doesn't mean that it will found in Pune also, या फिर पुणे में पाया गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुंबई में वो फाउंड होगा ही होगा, isn't it? Or any part of the country or any part of the state it will find. So these are what independent events. Okay, यहाँ पे कुछ पेशेंट पाए गए नए वेरिएंट्स के, तो इट डजंट मीन दैट it will be found everywhere or in every major city of Maharashtra or Pune or एवरी मेजर सिटी ऑफ इंडिया. ओके, तो सारे इवेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से. ओके, तो और कुछ अगर एग्जांपल आपको देना है तो अभी हम अपने कॉमन एक्सपेरिमेंट जो है इसकी तरफ आएंगे, टॉसिंग अ कॉइन. ओके, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया. अभी हम टॉसिंग अ कॉइन यानी कि जो हम जनरली प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं. अभी टॉसिंग अ कॉइन, आप कॉइन को 4 टाइम्स आप ये कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, है ना. तो फर्स्ट टाइम हेड आया, इसका मतलब ये नहीं कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा. यू कैन नॉट से. ओके, हेड आएगा टेल आएगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट टाइम. तो अगर आप 4 कॉइन्स एट अ टाइम, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि at first toss head आना, it doesn't mean that there will be head in the second toss or tail on the second toss. okay, तो यहाँ पे सारे इवेंट्स कैसे एक दूसरे से कैसे है, इंडिपेंडेंट है. ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि किसी एक इवेंट का ऑकर होना ना होना ये दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, so such events are called as the independent events. Okay, is that clear to all of you? Yes or no? Yes. So let's go through the definition. The events A and B are defined. The events A and B defined on, yes. The events A and B defined on a sample space omega are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one of them does not influence the occurrence or non-occurrence of other event. तो यह है इसका कंसेप्ट. ओके, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो इसके डेफिनेशन हम लिखते हैं इस तरीके से. दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. तो कंसेप्ट वही है जो अभी मैंने एग्जांपल के साथ बताया. इसका अगर डिफाइन करना है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. The events A and B are defined on a sample space omega are said to be independent if P of A intersection B, इसका कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना है. थ्योरेटिकली हमने देख लिया है, थ्योरेटिकली हमने देखा कि इसके कंडीशन, इसमें इसके कंडीशन क्या होता है, ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस डिपेंड नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर. ओके, पर अगर इसके लिए कुछ कंडीशन नोटेशंस की हम बात करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. Let's write here. So this is the formula that must be satisfied. आप दो इवेंट्स ए एंड बी को इंडिपेंडेंट आप तभी कह सकते हो जब जब क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, सो टू इवेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, टू इवेंट्स ए एंड बी डिफाइंड ऑन sample space omega are said to be independent if and only if this condition satisfies. ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, और उसका कंसेप्ट क्या हुआ, ऑकरेंस ऑफ नॉन ऑकरेंस, ऑकरेंस ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट does not mean that does not have any influence on the occurrence or non-occurrence of another event. एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसके लिए, कुछ कंसेप्ट हमको अभी भी क्लियर करना है. लेट्स गो थ्रू दैट वन. इसके ऊपर कुछ बेस्ट थ्योरम्स है. ओके, अगर ये थ्योरम्स अगर हमने देख लिया तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स हमको और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं. ओके,
So there are some theorems based on the independence of events. Are you able to see the screen properly? Yes, sir. Yes, sir. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, मैं रिवाइज करता हूँ और ये थ्योरम से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये थ्योरम क्या कहता है, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो पॉसिबल जो पेयर्स है ए एंड बी डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको प्रूव करना है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ये सारे तीनों कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ए और बी के वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रूव दैट वन। तो हमको दिया गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो गया। ठीक है, लेट्स कॉल इट 1। ओके, तो अभी हमको क्या प्रूव करना है, 1 बाय 1 ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये तीनों हमको 1 बाय 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 को लेते हैं। ओके, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये प्रूव करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ नोटेशन अगर हम बात करें तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, कैसे प्रूव करना पड़ेगा, ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश। इजंट इट, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये प्रूव करना है, ए एंड बी डैश को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, इसका मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया है इसको हमको प्रूव करना है। तो हम इसमें से अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ले लेंगे। लेट्स टेक अ राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश। ठीक है, इज इट ओके? अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब पी ऑफ ए, अब पी ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ बी, यस और नो, यूजिंग थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, पी ऑफ बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ बी। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, anybody please tell? Yes. Okay. So now solve this one, P of A into, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस P of A into P of B आएगा, P of A दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलने वाला है। ठीक है, और अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ, P of A into P of B, चेक इट, ये A एंड B कैसे इंडिपेंडेंट है, A एंड B इंडिपेंडेंट, A एंड B इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P of A into P of B क्या हुआ? यस, हु विल आंसर मी? यस, क्या लिखना चाहिए मुझे, P of A into P of B, आंसर प्लीज। P of A intersection B. यस, इट इज P of A intersection B। ठीक है, यूजिंग 1। इसके बाद हम थोड़ा सा वेन डायग्राम में झांक के देखते हैं, P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B क्या होता है। हमने थ्योरम ऑन लास्ट वाला थ्योरम जो हमने प्रूव किया था उसमें हमने देखा था ये दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये इवेंट्स, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो इवेंट्स है ओनली दिस पार्ट, ये क्या है, ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बराबर, ये क्या है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश है, बराबर है। और ये वाला पोर्शन जो है, चलो इसको मैं रेड कलर से ये कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, इट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
तो आप देखो P ऑफ A में से ये इसका फार्मूला भी दिया है मैंने आपको पहले। P ऑफ A में से अगर ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यस टेल मी, यहाँ पे क्या आएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। ये समझा कि नहीं समझा? जिनको नहीं समझा बताइए, या फिर जिनको समझ में आए वो भी बताओ। यस नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। ये ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में देखा है हमने, है ना? हमने ये सब देखा हुआ है। अगर आपको इसी तरीके से P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो देखो हमको क्या प्रूव करना था? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला तो प्रूव हो गया कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A एंड B डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं सेकेंड में हमको क्या प्रूव करना है? व्हाट टू प्रूव? अगेन A डैश एंड B आर इंडिपेंडेंट, इनको हमको प्रूव करना है। ये वेन डायग्राम आपको याद रखना है। अगेन हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो A डैश इंटरसेक्शन B, A डैश एंड B को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि P of A dash intersection B is equal to P of A dash into P of B. So let's again take right hand side. Okay, so this is P of A dash into P of B. तो इसको हम ये कर सकते हैं, P of A dash means 1 minus P of A into P of B. The same steps, सिर्फ यहाँ पे टर्म्स अलग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? P of B minus P of A into P of B. अगेन ये देखो क्या आएगा? P of B minus P of A intersection B. Is this clear to all of you? Again the same reason there. सिर्फ यहाँ पे P of A की जगह पे P of B है, तो ये क्या आएगा? Can you tell me from this Venn diagram? P of B minus P of B, B में से अगर कॉमन A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो क्या बचने वाला है? यस dash. P of P A of A dash dash intersection intersection B. B. It is nothing but the left hand side. ओके, तो हमने ये भी प्रूव किया कि A डैश एंड B आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अभी आखिरी वाला हमको प्रूव करना है। So let's prove that one also. So what is the next statement we have to prove? What you have to prove? कि A dash and B dash आर इंडिपेंडेंट, ये हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है? कौन बताएगा? इसका मतलब है A डैश P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। ठीक है, अगेन द सेम स्टेप, लेट्स टेक द राइट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड क्या है? P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो P ऑफ A डैश का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ A। ओके, और P ऑफ B डैश का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ B। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? आई होप नोबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करो। तो 1 माइनस P ऑफ B, नेक्स्ट टाइम P ऑफ A। ओके,
पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस पी ऑफ बी आएगा, और नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, पी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो इट इज पी ऑफ ए इंटू प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यस और नो? अब यहाँ पे चेक करो ये क्या आने वाला है, व्हाट इज दैट? आर यू देयर? आर यू देयर इन द लेक्चर? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो पी ऑफ ए Yes, इंटू sir. पी ऑफ बी का, ओके थैंक यू। तो यहाँ पे क्या आएगा वो चेंज करो। हमको पता है ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अब इसको थोड़ा सा रिअरेंज कर लेंगे। पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस ए P of A इंटरसेक्शन बी। intersection B. यस, रीजन इज यूजिंग 1, हमने पहले लिख के रखा। अब यहाँ पे क्या करो, पी ऑफ, अब ये माइनस साइन कॉमन लिया आपने, और अंदर में क्या आएगा फिर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये ब्रैकेट में जो हमने टर्म लिया है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो 1 माइनस, व्हाट इज दिस टर्म, डू यू रिमेंबर इट? P of A union B. एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो दिस इज पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यूजिंग थ्योरम, यूजिंग थ्योरम, वो हमारा लास्ट थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, इट इज आवर थ्योरम। ओके, हमने वो उसे प्रूव किया है। इसके बाद 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे ही लिखते ना, पी ऑफ ए कोई इवेंट, पी ऑफ ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए। ओके, तो अभी ए की जगह पे ए यूनियन बी है, बस उतना ही डिफरेंस। ओके, तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, व्हाट द डी मॉर्गन्स लॉ सेज? डी मॉर्गन का लॉ पता है आपको, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे जो जरूरत है उसका ही मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यस और नो? Yes, sir. तो यही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, सी द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, पी ऑफ, देखो यहाँ पे चेक करो। ओके, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो क्या हमने प्रूव किया है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो फिर हमने ये सब चीज़ें प्रूव किया है। ओके, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हम समराइज कर लेते हैं, लेट्स समराइज। 10 अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे कॉम्बिनेशन ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, एंड ए डैश एंड बी डैश are all independent. Is it clear to all of you? ये हमने प्रूव कर डाला है। यस और नो? तो ये थ्योरम आपको हमेशा याद रखना है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। हमने थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हमने थ्योरम देखा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है वो समझा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, two or more events are said, two events A and B are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not influence the occurrence or non-occurrence of another event. तो सिंपल तरीके से अगर याद रखना है तो अगर आप पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्रेंड भी पास हो गया, या फिर आपका फ्रेंड पास हो गए, कोई बड़ी एग्जाम पास हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हो जाओगे। ठीक है, तो ये कहीं से भी ये हो सकता है। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी जॉब करते हैं, ओके,
मान लो कि कोविड में उनकी जॉब छूट गई और उसके बाद अभी उनको हस्बैंड को जॉब लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ को भी मिल जाए, या फिर वाइफ को जॉब लग गई यदि नई जॉब, इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड को भी मिल जाएगी जॉब। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट इंडिपेंडेंट। ओके, तो इन चीजों के ऊपर हमने अभी थ्योरम देखा है। ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट होता है तो इसके मतलब इसके सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी एंड ए डैश एंड बी डैश, ये सभी इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसको हमने जस्ट अभी प्रूव किया है। ओके, सो प्लीज आंसर योर रोल कॉल नाउ। Now I stop recording. Next time you will see the definitions, numerical examples based on these independent events. Okay.